माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू परचेज समथिंग. सपोज उसको एक कंप्यूटर खरीदना है, बट ही इज नॉट श्योर कि कौन सा कंप्यूटर खरीदूं. इन डे टू डे लाइफ वी आस्क अवर फ्रेंड्स. इसको जर्मन में वो अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा कि साथ में चल मेरे. लेट्स सी. सो दिस टाइम मे बी बंटी एंड maybe Lashita. So B for Bunty, L for Lashita. Yeah. Lashita will start. Hello Bunty. V Gates. Bunty. Hallo Lashita. Mir geht es gut. Und selbst. Selbst is also und dir. एक ही बात है. आप ये मत सोचना कि ये selbst क्या आ गया. Und selbst, I am just repeating. We get es dear. The same thing. And yourself, selbst. This is S und selbst. Okay, now Lashita. Ich hatte Fieber, aber jetzt geht es mir wieder gut. The sentence means I had fever but now it's better. Now I'm feeling better. Mir gut, or you can say besser. I should write here besser. Besser का मतलब है better. Wieder besser. Bunty. Aha. Was hast du am Wochenende vor? Vorhaben का मतलब है प्लान. Vorhaben means your plan, your idea, plan. Yeah. Vorhaben means to intend, means to have an intention, or just plan, to have a plan. So what is your plan? Am Wochenende means in this weekend. Yes, क्या है तुम्हारा प्लान? Lashita. Nichts Besonderes means nothing special. Besonders means special. And du, was magst du am Wochenende? And du, and you, was magst du am Wochenende? Bunty. Ich will einen Computer kaufen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung means idea. I have no idea. Kannst du mir helfen? Kannst du बोल सकते हैं. Kannst du mir helfen? Lashita. Ja. Gerne.
अब am Samstag habe ich frei. Geht es dir? दो से फ्राई हाबन मतलब आई एम फ्री. जाइन नहीं लिखते इसके लिए, फिक्स एक्सप्रेशन है. जर्मन ऐसे नहीं बोलते इश बिन फ्राई. इश बिन फ्राई नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे इस हाबे फ्राई. सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसे ही बोलते हैं जर्मन्स. हम लोग जर्मन्स को फॉलो करते हैं ना. इश हाबे फ्राई का मतलब है आई हैव फ्री टाइम. इश बिन फ्राई का मतलब और भी निकल जाता है एक्चुअली ना. इश बिन फ्राई तो इश हाबे फ्राई बोलना होता है हमको. या gerne aber am Samstag habe ich frei. Gehen wir also gegen 10 oder 11 Uhr question mark. Dann बंटी. ओ danke. Ich sage am Abend Bescheid. लशिता ओके ओके. Bis Abend. Tschüss. Now we'll see once again. वापस से देखते हैं क्या लिखा है मैंने. आप लोगों से डायलॉग करवाऊंगा इसलिए ध्यान से देखना. अभी लसिता स्टार्टेड द स्मॉल टॉक. हेलो बंटी, वी गेट एस. बंटी हेलो लसिता, मी गेट एस गुड. und selbst means und dir. selbst का मतलब है und dir. and you, wie geht es dir? Lasita, ich hatte Fieber, aber jetzt geht es mir wieder besser. Wieder का मतलब है again. Now again I am feeling better. Besser. Aha. Was hast du am Wochenende vor? And what is your plan of the weekend? Nicht besonders. Nicht besonders का मतलब है nothing special. Nicht besonders. ये आपको जो डायलॉग्स हैं ये फिक्स एक्सप्रेशन. ये वर्ब है यहां पे फोर हाबन. फोर हाबन यहां लिखा है ना मैंने, फोर हाबन. निश्ट बिजोंडर्स इस तरह के. und selbst. these fixed expressions will help you actually. ये हेल्प करेंगे आपकी कोई भी डायलॉग को डील करने में. und du means ich habe am Wochenende, also was hast du am Wochenende vor? उसने बोला I don't have anything special. and you, do you have something special in your mind? Was machst du am Wochenende? What you are doing on weekend? The person means Bunty is saying ich will einen Computer kaufen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. I want to purchase computer. Kannst du mir helfen? Can you please help me? And then Lasita says, ja, gerne. Aber am Samstag habe ich frei. But on Saturday I have time. Gehen wir gegen 10 oder 11 Uhr? Could we go around 10? Gegen means around 10 or 11. Oh, danke. Ich sage am Abend Bescheid. Am Abend Bescheid. Here it is also a special expression. It means Bescheid sagen. Bescheid sagen means I will update you. किसी को अपडेट करने को बोलते हैं Bescheid sagen. Ich sage dir Bescheid. मैं बताता हूं. Okay, bis Abend. Tschüss. Bis Abend का मतलब है till evening. See you evening or talk to you in the evening. Again, ये एक्सप्रेशन का मतलब है इसका. So this is the basic dialogue.
एक लास्ट डायलॉग और लिखूंगा मैं, एंड देन यू विल डू द डायलॉग, यू विल हैंडल वन स्मॉल डायलॉग. ओके, इसको तो वापस आपको शेयर कर दूंगा मैं. वन मोर डायलॉग, एंड दिस टाइम मे बी मंजू इज देयर एंड यश. ओके, डायलॉग तो मैं ही लिख रहा हूं. मंजू, यश, M, Y. Okay, and what they are going to do? Maybe हम लोग शॉपिंग का ही करते हैं आज, कुछ ना कुछ खरीदना है, क्योंकि अलग अलग तरह के डायलॉग दूंगा तो आप लोग अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो. A1 का लेवल तो ठीक नहीं है अभी ज़्यादा, बट हम लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे बस. सो मे बी यू वॉन्ट टू परचेज क्लोथ्स. यस, सो Manju wants to purchase. Yash will start. Hello Manju, we get us dear. Manju, mir geht es gut. Mir geht es gut. Und dir? We get us dear. Repeat, I am just repeating. We get us dear. Yes. Mir geht es gut. Ich will für also Manju want to purchase na. Ich will was hast du am Wochenende vor? Ich will für meine Schwester Kleidung kaufen. Okay, यश पूछ रहे भाई ये तो. Ich will für meine Schwester Kleidung kaufen. Aber ich verstehe nicht viel von Kleidungen. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. I want to purchase clothes for my sister, but I don't understand much about clothes. मुझे ज्यादा समझ नहीं है. देखते हैं क्या बोलती है मंजू. Aha, ich kaufe auch am Wochenende Kleidungen für mich. Du kannst mitmachen, du kannst mitkommen. Du kannst mitkommen. Wir können die Kleidungen dann zusammen kaufen. Dann Yash. Oh, das ist eine gute Idee. This is a good idea. Danke schön. Or danke. Aber wann hast du dann Zeit und wie viel Uhr gehst du einkaufen? आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो.
देन मंजू, गेगन 11 Uhr, मंजू भी पूछ रही है 11 बजे चले, यश, या 10 past mir gut, ओके bis 11 Uhr चूश। नाउ एक बार वापस से देख लो इसको, पूरे डायलॉग को, अब आप करोगे डायलॉग। सो यश स्टार्ट्स, हालो मंजू, वी गेट्स डियर। मंजू, मी गेटस गुट und डियर, तुम कैसे हो? वी गेटस डियर, हाउ आर यू? mir गेटस गुट, ich will für meine Schwester Kleidung kaufen, aber ich verstehe nicht viel von Kleidungen। ये फिक्स एक्सप्रेशन मैं हाईलाइट कर देता हूं। Ich verstehe nicht viel von Kleidungen, कि मुझे क्लोथ्स की ज्यादा समझ नहीं है। प्लूरल लिखते हैं लोग, मुझे क्लोथ्स की समझ नहीं है। और फोन के बाद में डाटिव प्लूरल आएगा। ऐसे ही मान लो आपको कंप्यूटर खरीदना है तो आप बोलोगे मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं है। हमको डे टू डे लाइफ में यही लगता है कि हमको समझ नहीं है, तभी तो किसी को लेके जाते हैं। थोड़े से भी श्योर नहीं हो तो हम किसी को लेके जाते हैं। सो कंप्यूटर के केस में भी आप ऐसे ही बोलोगे, ich verstehe nicht viel von Computern। किसी को फर्नीचर खरीदना है, कैमरा खरीदना है, ich verstehe nicht viel von Tischen, viel von Stühlen, viel von Kameras। जो भी खरीदना है बोल दो उसकी समझ नहीं है, और साथ वाले की हेल्प लेने के लिए बोल दो उसको। aha, ich kaufe auch am Wochenende Kleidungen für mich, I am also purchasing clothes for me। उसको बहन के लिए खरीदना है और इसको खुद के लिए खरीदना है, तो ठीक से दोनों साथ जा सकते हैं। Du kannst mitkommen, mitkommen to come along, mitkommen एक साथ वर्ब है, common भी इनफ था। Du kannst common मतलब मेरे साथ आ सकते हो, इसलिए mitkommen लिखा है मैंने। Wir können die Kleidungen dann zusammen kaufen, zusammen is together, we can purchase clothes together, because of modal verb main verb is coming at the end, you know that। oh, das ist eine gute Idee, again this is a fixed expression। ये फिक्स एक्सप्रेशन 10-20 याद हो जाएंगे तो काम वैसे इजी हो जाएगा। das ist eine gute Idee, this is a good idea, danke, thank you, aber wann hast du dann Zeit, when do you have time und wie viel Uhr gehst du einkaufen। बिकॉज उसने तो अपना प्लान बना रखा है, उसके हिसाब से ही जाएगी ना। तो वन हैज टू साइट, वन और wie viel Uhr दोनों यूज किए हैं मैंने, देखो वन और wie viel Uhr। सो वन में वन एक्चुअली ज्यादा ओपन है, इसमें तो ये भी हो सकता है इन द इवनिंग, जैसे वन का जवाब कोई बोल सकता है am Abend या am Mittag, am in der Nacht, कुछ भी बोल सकता है बंदा। बट मान लो ये बोल दे मुझे सुबह टाइम है, तो इसने ये भी पूछ लिया कि कब टाइम है, प्लस फिर घड़ी का टाइम, क्लॉक टाइमिंग्स भी पूछ लिया, एट व्हाट टाइम, अराउंड व्हाट टाइम। einkaufen when you are going shopping, so einkaufen gehen वर्ब है एक्चुअली, einkaufen gehen, तो einkaufen को एज इट इज लास्ट में ले लिया हमने एज ए सेपरेबल। देन मंजू इज सेइंग gegen 11 Uhr, अराउंड 11 o'clock जा रही हूं मैं, चलेगा, तुमको भी सूट होगा ना, मतलब क्वेश्चन इसलिए लगाया है, इज इट फाइन विद यू ऑल्सो। या das passt mir, this is again a fixed expression, das passt mir gut, it suits me, passen dative है इसलिए mir आया है। okay, bis 11 Uhr, see you then at 11 o'clock,
चूज। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या क्वेश्चन और जुड़ सकते हैं वो और बोल देता हूं मैं आपको, नया डायलॉग नहीं लूंगा कि क्या क्या पूछ सकता है बंदा डायलॉग में, वो आपको अभी डायलॉग करोगे तो जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस है ये, आपसे आपस में प्रैक्टिस, आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो भी तो जवाब भी देना पड़ेगा। तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? एक तो क्वेश्चन जनरली कि व्हेन वी शुड गो, तो वन गेन वियर, दिस इज फाइन, और वन क्योनन वी गेन, व्हेन कैन वी गो, वन क्योनन वियर गेन। टाइम घड़ी क्लॉक टाइमिंग पूछना हो तो वी फील उअर गेन वियर, या फिर वी फील उअर हाश टू साइट। वी फील उअर हमेशा एक साथ आएगा एंड वर्ब विल कम जस्ट आफ्टर दैट, क्योंकि ये पूरा मिला के डब्ल्यू वर्ड है, जैसे वन एक डब्ल्यू वर्ड है, ऐसे वी फील उअर, क्लॉक टाइमिंग स्पेशली। एंड आप ये पूछ सकते हो कि हाउ वी विल गो, मीन्स बाई ट्रेन और बाई बस और बाई कार। सो वी गेन वियर मीन्स हाउ, ये तो वन कब, एट व्हाट टाइम, क्लॉक टाइमिंग्स। वी मीन्स हाउ वी गो, जवाब हो सकता है वी गेन मिट माइनम ऑटो, और वियर गेन सूफूस, पैदल चलेंगे, और वियर गेन मिडिम्बूस, वियर फारन लिखेंगे, फिर वियर फारन मिडिम्बूस मिट माइनम ऑटो। ओके, वो क्योनन वियर, कोई भी चीज डायलॉग में आप कहोगे कि कहां खरीद सकते हैं हम लोग, सपोज लास्ट क्वेश्चन, वो क्योनन वियर काउफन, कोई भी चीज, कंप्यूटर बोले तो वो क्योनन वियर कंप्यूटर काउफन, वो क्योनन वियर उस चीज का नाम आ जाएगा काउफन। ऐसे करके आपको बीच बीच में अपनी मर्जी से जो भी लगे ना तुमको लॉजिक, ये नहीं सोचना कि सर ने नहीं लिखा तो मैं भी पूछूं कि नहीं पूछूं, आपको जो कंफर्ट आए, जो चीज भी पूछनी है वो आप लोग एक एक करके, आपको मैं बोलता हूं, आपको इससे रिगार्डिंग कोई, यस प्लीज। वन मतलब व्हेन, कब, वन गेन वियर, व्हेन वी आर गोइंग, वन क्योनन वी गेन, व्हेन वी कैन गो, मतलब आपस में फाइनल तो दोनों मिलके करेंगे ना, इसलिए। ओके, सो नाउ